Hello everyone, you're watching The Savera and I'm Pavit Kaur. The case of senior Haryana IPS officer Y. Puran Kumar's suicide remains unresolved. The deadlock between the IPS officer's family and the government has continued for 6 days. Today, Monday, marks the 7th day and the post-mortem has not been conducted due to the family's lack of consent. On Sunday, Chandigarh police had sent a notice to the IPS officers, to the wife, that is the IS wife, Abneet P. Kumar, asking her to complete the body's identification process. The Chandigarh administration has decided that the post-mortem will be conducted by doctors from PGI. The medical board will also include a ballistic expert and a magistrate. However, IS officer, the wife of IPS officer Amneet and her brother, Punjab MLA Amit Ratan from Bathinda have been firm on their demand for the removal of DGP Shatrujit Kapoor. The government has already attempted to pacify the family by removing Rohtak SP Narendra Bajarnia. Meanwhile, Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti visited Amneet Kumar's residence in Chandigarh to express condolences. Puran Kumar was originally from Andhra Pradesh, which was later bifurcated to form Telangana. The Telangana Deputy CM said that the DGP and SP should be suspended and immediately arrested. He added that the Telangana Chief Minister Revant Reddy also spoke with the family over the phone. He stated that they will not stay silent on this issue. If such injustice can happen to a Dalit officer, how can other Dalits feel safe? DGP Shatrujit Kapoor had been harassing Y. Puran Kumar for a long time, he alleged. Not only this, the political movement continues at the residence in Sector 24. Punjab Cabinet Minister Harpal Singh Cheema has said that the case of senior Haryana IPS officer Y. Puran Kumar's suicide remains unresolved. The deadlock between the IPS officer's family and the government had continued for 6 days. And today, it marks the 7th day and the post-mortem has not been concluded due to the family's lack of consent. So right now, the political movement continues. The ministers keep visiting. Not only this, the different diaspora based by the Chandigarh police or the officials continue to visit, be it the Dalit farms, the SC/ST community or the different political leaders are continuously visiting the family here. But right now, the 7th day also the problem remains unresolved. The family has not given the consent for the same. So it has to be seen for how many days the situation will continue, because the family's lack of consent has been stopping the post-mortem. So this is the 7th day and we are reporting from Sector 24, where it is the official residence of the IS officer, who is the Amneet Kaur, who is the wife of late ADGP. So we have to wait and see what all comes in the development in the coming hours. With Bunny, this is Pavit Kaur for the Savera. पूरन सिंह जी, जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होके पढ़ लिख के और आईपीएस का यूपीएस का एग्जाम पास करने के बाद एक डीजीपी के ओहदे तक पहुंचे, एडीजीपी के ओहदे तक पहुंचे और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेटर, उन्होंने अपनी जो उनके साथ बेइंसाफी हो रही थी, जो उनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, जो बीइंग ए दलित, बीइंग ए एससी कम्युनिटी, उनको टारगेट किया जा रहा था, उन्होंने समय समय से हरियाणा की सरकार के मुखिया सीएम के साथ, उनके बड़े अधिकारियों के साथ बहुत बार, अकेले ये नहीं कि उनको मिलकर चर्चा की, लेटर भी लिखे, पर लेकिन अफसोस कोई भी इंसाफ जो उनको नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप जो उठाया, मैं समझता हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेट के अफेयर्स हैं। ये उस स्टेट के ऐसे हालात हैं जहां आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का क्या हाल होगा। जो एक एडीजीपी को इंसाफ नहीं मिल सका, एक सीनियर आईपीएस को इंसाफ नहीं मिल सका, तो वहां की जनता, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव उस स्टेट में होता होगा। तो मैं समझता इसकी फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार की यही मांग है कि जैसे उन्होंने अपने फाइनल नोट में लिखा है, जो भी कल्प्रिट हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, जो भी लोग हैं,
उन लोगों को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको SC/ST एक्ट के अधीन उनको जेल में बंद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जो समाज के खिलाफ साजिश रखते हैं और खास करके गरीब वर्ग के खिलाफ साजिश रखते हैं। उन लोगों के खिलाफ मैं समझता हूं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। उनका परिवार की यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, भाई पूरन सिंह जी को जस्टिस मिलना चाहिए और उस जस्टिस के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम साथ देंगे परिवार का। सब 7 दिन हो गए हैं की लगता है मामला परिवार ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ लगता है मामला कितने अटका है क्योंकि अभी तक संस्कार नहीं हो पाया, देखो देखिए मामला इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि दोषियों को जो हरियाणा की सरकार है वो बचा रही है, हरियाणा का प्रशासन बचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको बचा रही है। सो परिवार तो इंसाफ की मांग करता है। एक ADGP लेवल के अधिकारी को इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कितना बड़ा टॉर्चर उसके ऊपर हुआ होगा, कितना बड़ा अत्याचार उसके ऊपर हुआ होगा। तो आज भी फिर दोबारा एक लगातार 7 दिन हो गए, आज उस परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, आज पूरे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हरियाणा सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ परिवार को थोड़ी जो है उनको थोड़ी संवेदना पड़ गई। देखिए पहले तो 3 दिन FIR नहीं हुई, फिर FIR हुई वो भी पेतली सी कर दी और उसके बाद धाराएं नहीं जोड़ी, शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट नहीं जोड़ा। तो इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार की जो मंशा है वो उसके खिलाफ थी, पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है। तो मेरी तो बार बार यही डिमांड है कि फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एडवोकेट भी बड़े सीनियर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ DGP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए कानून से बड़ा कोई भी अधिकारी नहीं होता, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, सब कानून के नीचे आते हैं। एक SHO, एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर भी ADGP को पकड़ सकता है, DGP को पकड़ सकता है। तो जब कानून अपना काम कर रहा होता है, जो कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर तो एक हवलदार को भी पावर है DGP को पकड़ने की। तो इसका पीछे साजिश कौन रच रहा है? तो साजिश का पर्दा फाश तो हो ही गया कि हरियाणा सरकार इसके पीछे लगी है। तो मैं तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सीमा जी, पंजाब के गवर्नर ने भी बात कही है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक जो है DGP पर जो है हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो संवैधानिक पोस्ट पे लगे हुए हैं, एक संविधान पद उन्होंने पद की गरिमा उनको बना के रखनी चाहिए। संविधान के प्रोटेक्टर हैं वो, उनको संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में लिखा है तो उनको फाइनल नोट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जब फाइनल नोट स्पष्ट करता है तो वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं कल्प्रिट्स को? तो मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल्प्रिट्स को मत प्रोटेक्ट कीजिए, उनको सजा दीजिए। यही संविधान की इंटेंशन है, यही संविधान की स्पिरिट है। थैंक यू। भाई पूर्ण कुमार जी जो हरियाणा का अफसर था, उसका जो जैसे जांच हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच होने की जरूरत है। आज परिवार के साथ सहानुभूति के लिए मैं तो आया था और मैं समझता हूं कि इसके पीछे क्या कारण बने, क्यों मजबूर हुआ। और इतना लायक अफसर जिसकी सिफतें हरियाणा में हर व्यक्ति करता है, देश में करता है, प्रेसिडेंशियल जिसको मेडल मिला हो, मेडल मिला हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऑफिसर को ये नौबत क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे कौन है, ये सब जांच होनी चाहिए। और परिवार जो बहुत शोक में है और परिवार के साथ जहां हम सहानुभूति करने आए हैं वहां उनको विश्वास भी दिलाने आए हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। हरियाणा सरकार से हम बात भी करेंगे कि जो भी दोषी है उस पर एक्शन होना चाहिए, कोई कितना ही बड़ा हो। और परिवार को जो है इस बात का दरवाज़ होना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी तक संस्कार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो ये सब बातें सरकार को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए और जल्दी लेनी चाहिए, ताकि परिवार जो शोक में ग्रस्त है उसको कोई थोड़ा बहुत मैं समझता सुकून मिल पाए। 7 दिन हो गए, अज
पोस्टमार्टम नहीं होया। परिवार लगातार डिमांड कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यही तो आश्चर्य की बात है। मैं उनके जो हैं ब्रदर इन लॉ हैं उनसे भी मिला हूँ, फादर के साहब से भी मिला हूँ, उनकी वाइफ से भी मिला हूँ। परिवार की एक ही मांग है कि जो असली दोषी है, जिसके और नाम है, वो उनकी तो जांच कर लें, मगर जो असली दोषी हैं, एक दो जिनका नाम लेते हैं, कम से कम उनको, उन पे तो केस दर्ज करें, कम से कम उनको तो पकड़ा जाए, उनको तो गिरफ्तार किया जाए, ताकि उसका संस्कार हो सके और जो अंतिम रस्में हैं वो परिवार पूरी कर पाए। तो इसके लिए तो सरकार को जरूर जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था बनानी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये एक्शन लेना चाहिए। पत्नी जो है अपनी अमनी जी है, अमनी कुमारी, ये भी मतलब आईएएस ऑफिसर थी। दोनों भी शेड्यूल कास्ट से थे और अमनीत कुमारी जी के पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे। तो ये पंजाब से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पी पूरन कुमार जी ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, आंध्रा से, हैदराबाद से करते थे और हरियाणा कैडर के वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो अब मैं मतलब उनके पूरे परिवार को मिला हूँ। उनके जो दो भाई, एक भाई मुंबई में रहता है, दूसरा भाई हैदराबाद में रहता है। उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो ये आईएएस ऑफिसर है, वो इधर ही मतलब हरियाणा के कैडर की है। और उनके जो ससुर है, जो हमारे पूरन कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरन कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वैसे होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे। और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था, लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई, इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है। इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी तकलीफ उनको हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक उन्होंने स्टेप उठाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीजीपी है, डीजीपी पर मुख्य आरोप है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आरोप है वो रोहतक के जो एसपी है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये फैमिली का कहना है भाई आप सीएम से बात करिए और जल्दी जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी रोहतक के जो एसपी है उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। सुसाइड नोट में उनके नाम है और इसीलिए मुझे लगता है कि एसपी और डीजीपी के नाम है, तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं 9-9.5 साल से उनके मंत्रिमंडल में हूँ और मतलब एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भी, और मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, इसीलिए भी आज मैं इधर आया हूँ। और पूरी देश भर की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी इसके संबंध में दुख व्यक्त करती है और अनेक जगह पर पूरे देश भर में इसका निषेध भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी अनेक संगठनों ने मतलब इस घटना का निषेध किया है
और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग पूरे देश भर के शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। और मैंने नायब सिंह सैनी साहब का टाइम मांगा है। उनकी मुलाकात अगर मेरी होती है तो मैं उनसे बात करने वाला हूँ। और जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि किसी को एसपी और डीजीपी को एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद ये एक फैमिली का कहना है, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो इसीलिए 6-7 दिन हो रहे हैं आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या होने के बाद भी। गवर्नर पंजाब से हाँ। चंडीगढ़ अब इसीलिए मतलब हम तो पूरे फैमिली को मिले हैं। उनके 2 भाई जो है वो भी मतलब हमको मिले हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो मतलब उनके साले थे हमारे उनके जो साले थे वो भी हमको मिले हैं। और सब परिवार हमको आज मिला है। उनके साथ मेरी 15-20 मिनट उनके साथ बात हुई है। और इस घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और इसी तरह की आज भी मतलब देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी मेंटेलिटी समाज में दिखाई देती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान का अपमान हो रहा है। इसी तरह मतलब इसका डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब ये एट्रोसिटी का देखता है। और मेरी मांग ये भी है कि मतलब जो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपी का नाम लिए हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सरकार जो है अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पर सरकार जो अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इसके बारे में आप बात करेंगे? हाँ तो मतलब मैं नहीं सीएम साहब को मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई उन्होंने तो बोला है कि भाई हम पूरी एक्शन लेंगे, कोई भी इतना बड़ा आदमी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मेरी अगर बात होती है तो मैं जरूर उसके संबंध में बात करूंगा। और 6-7 दिन हो रहे हैं तो अभी तक मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना, अंतिम संस्कार नहीं होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए माननीय सीएम साहब को मेरा निवेदन है जल्दी जल्दी मतलब कार्रवाई करने के आदेश दिए जाए। और जो एफआईआर में किसी के नाम नहीं ऐसी मुझे जानकारी है, लेकिन जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है वो सभी नाम मतलब एफआईआर में आना चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी सूचना है। सर आपको आप हर सरकारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कह रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम को, लगता है ये मामला केंद्र तक जाना चाहिए, केंद्र आगे इस पे कुछ कार्रवाई करें सेंटर तक, क्योंकि चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है ये सारा। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में मामला जुड़ा है, लेकिन वैसा वो आईपीएस अधिकारी तो हरियाणा के कैडर के थे और वैसा मामला हरियाणा का ही है। मतलब चंडीगढ़ में तो रहते थे, मतलब यहाँ रहते थे, लेकिन उसी तरह मतलब जरूर ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। और नायब सिंह सैनी जी हमारे बीजेपी के, हमारी एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर है, तो वो जरूर इसके संबंध में सीरियस है। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है उसके संबंध में उनके साथ बात करूंगा। और मेरी सूचना ये है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आज शाम अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे सरकार को, कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, वो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो फिर
उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज से धक्का लगता है, कितना बड़ा दर्द उसमें होता है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात की तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में। अभी मैं गवर्नर से मिलूंगा पंजाब वाले से, उनसे जाकर के कहूंगा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मामला चंडीगढ़ का है। हरियाणा की सरकार तो इस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन करना चाहती है। ये पहली बार नहीं है, हरियाणा अनेक बार इस तरह की चीजों से शर्मसार हुआ है और सत्ता में बैठे लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। संदीप सिंह का जो मामला था वो भी हमारे प्रदेश के लिए इतना ही शर्म का विषय था और आज तो पूरा देश जो है, पूरी एक सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी आईएएस आईपीएस जो है वो सब आज इस बात को लेकर के कहीं चिंतित है कि कल को सरकार तो किसी को भी अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। मैंने तो जिस दिन ये पहले दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन इनके जो भाई एमएलए हैं उनसे बात करी थी, क्योंकि वो हमारे नेबर साथ लगती हुई डिस्ट्रिक्ट से एमएलए है, और उनको कहा था भी हम आपके साथ हैं पूर्ण रूप से। आज भी मैं उनको यही बात कह करके आया हूँ कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ केवल खड़े नहीं हैं, हम सरकार को इसके लिए मजबूर भी करेंगे। अबे जी, परिवार में से थोड़ा ये कहना है कि डीजीपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो, एसपी की गिरफ्तारी हो, लेकिन एक पहलू ये आ रहा है कि डीजीपी उच्च स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति है, तो पहले जांच होगी, उसके बाद जो है पहलुओं तक पहुंचा जाएगा, और उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। मामला जो लास्ट में जो मामला है वो रोहतक पुलिस से जुड़ा हुआ है। अगर यही बात एक आम साधारण आदमी की होती तो अब तक पूरे परिवार को उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। डीजीपी जो है वो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी एक आम आदमी है। अगर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है तो फिर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है। ये सिर्फ ये कहूँगा कि परिवार तो अंडर शॉक है ही। एक हफ्ते से तकरीबन टॉर्चर हो रहा है परिवार, लेकिन सरकार बिल्कुल ज़िद्दी, कठोर और इनसेंसिटिव अपने आप को साबित कर रही है कि कोई असर ही नहीं हो रहा किसी बात का। परिवार की पीड़ा, उनके दर्द को समझ नहीं पा रही, उनकी भावनाओं की जो कदर करनी चाहिए थी वो कदर नहीं कर रहे। एक, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रिलियंट ऑफिसर थे वो। द फैक्ट दैट ही इज़ ड्रिवन टू दिस, उनको ये करना पड़ा, ये एक कदम एक्सट्रीम लेना पड़ा। इससे सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए थी और इनका दर्द वहाँ उनको कम करना चाहिए था। वो जो इन्होंने नहीं किया, संवेदनशीलता से काम करना चाहिए था। सरकार को बिल्कुल उसके विपरीत कर रही है कि लगे रहो आप बेशक करने, आके बातें करेंगे। और मैं कहता हूँ इन पे बल्कि जो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात की, जब इन्होंने कहा कि इनकी बात मान ली। क्या बात मान ली? एफआईआर कर ली। एफआईआर करना किसी पे कोई ऑब्लिगेशन सरकार की होती है, ना कि किसी पे आप किसी को ओबलाइज कर रहे हो। सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि एकदम जब कोई ऐसा एक्शन होता है उसके बाद एफआईआर लॉन्च करनी होती है। इनका है कि उनको एक्शन लेना चाहिए। 11 लोगों के नाम दे रखे हैं उसमें कि उन्होंने लंबे अरसे से कैसे ये पीड़ित होते रहे, यहाँ तक कि एक दलित ऑफिसर होते हुए इनको सिर्फ इसी कारण, जो सीनियर ऑफिसर हैं, कि मंदिर नहीं जा सकते, इनको अपने पिता की मृत्यु हुई उसके लिए जाना चाहें उसके लिए नहीं जा सकते। ये तो
हिल जाता है आदमी सोच के कि सरकार की ये हालत है कि किसी चीज़ पे इनका कोई असर ही नहीं हो रहा। सरकार को कार्रवाई करनी होगी, आखिर पे ऐसा एक लोकतंत्र में नहीं चल सकता। ये बिल्कुल टोटलिटेरियन एक सरकार जैसी बात ये बीजेपी की सरकार कर रही है। An additional DG rank officer who served as in the Department of Ra also, which is a very, very important and prestigious wing of the country. And also the President Medal Award winner committed a suicide on 7th October, given his life, is something very alarming and very, cautioning to the entire country what is happening in this. Shri Puran Kumarji, while giving his life, is given a dying declaration also, in which he has mentioned particularly two officers' names, where they have humiliated him, insulted him, and they are the main root cause for his suicide. As per the law of the land, the law of this country, generally basing on this suicide note or the dying declaration is taken into serious consideration, and the government acts immediately on the dying declaration. But unfortunately, even after so many days, the Haryana government is not acting as per the law, and unfortunately even the dead body is lying like that for 7 days without a post-mortem. The two young daughters and the old mother are not able to see the dead body. It's so pathetic and inhuman. I, seriously demand the government of Haryana and the police of the Chandigarh to take an action immediately against these two officers who are seriously responsible for his suicide. And DGP, Mr. Kapoor, and SP, Mr. Narendra. And Mr. Kapoor is known for a long time in the state, he is known for his anti-Dalits and anti-weaker sections. And the government, knowing the fact, made him the DGP and making him to torture the officers who are belonging to the weaker sections and finally making them to die. Brothers, please understand, any person, any individual, even after crossing 100 years also, he'll try to live. Even on the deathbed also, he'll try to beg the doctors, please save our life. I want to live. For an officer like additional DG rank officer, IPS officer, who won the President medals, will try to live with a pride on the land of. And imagine that kind of an officer with so much of achievements are decided finally, I'm sorry, I cannot live on this land and I have to die. Can you imagine the plight, what he has undergone? And people in the government and the humanists particularly should understand and stand for the family
as to at least, his last dying declaration demand has to be taken care. I know these things are taking place repeatedly for 7 days. The entire state of the human is, asking and demanding the government to take action against the concerned two officers who are responsible for his death, his suicide, but still they are not responding. The Chandigarh police was supposed to, arrest the people immediately after seeing the note, a dying declaration, which they have not done. The Haryana government is supposed to suspend them and take an action and by arresting them, which they have not done. Both Haryana government and the Chandigarh, which is directly under the control of the government of India, are both belonging to the BJP government. I am not only requesting, I am also demanding, as a human being, this is the basic responsibility of any chief minister or the prime minister or the home minister of this country, to protect the constitution and the law. If it cannot be done the justice to the highest, person who is serving in this country at the highest level himself is not able to get the justice, you can understand the common man's life in this country. My, state, my chief minister, Sri Revanth Reddy Garu, is so particular, and he called and spoke to his mother, his wife, and he has sent me immediately an officer coming from Hyderabad who has done his IIM. He did his engineering in Osmania, coveted university like Osmania University Engineering, and then IIM. A bright student got into civil services and serving Haryana state, has committed suicide. It is so unfortunate. It is a shame for every human being whoever is thinking about it. Protests are happening over there across the state. Is Congress going to intensify those protests? And you have spoken to the family. Are they still on the same thing that after the arrest of the postmortem? Yeah, correct. See, it is not the question of the Congress party, or it is not the question of somebody else. It is the question of the civil rights and human rights of this country. And everyone is having a right to live on this country, on this earth. Living right you cannot deny. Of course, definitely the Congress party will not tolerate these kinds of things. We will take it up. And also at the same time, we demand the governments, both state and central government, to take action immediately by arresting the DGP and the SP officer who are all named in that suicide note. At least this is the minimum responsibility of the governments. And also at the same time, they have to give the protection to the family of Puran Kumar, his wife and two young daughters and his old widowed mother. Congratulations.